Hi students, morning once again, and let us continue once again with the topic of coordination, coordinate geometry, sorry. So currently till now what we have done is we have studied the formula that is known as distance formula, which is guys very simple. It is nothing else. Distance between two coordinates is say AB, it should be equals to under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 the whole square. What is x1, x2, y1, y2? Common sense guys, these are coordinates of 2 points A and B. Let us today once again continue with the same kind of questions, but guys then we are going to study which is the most important formula, which is known as section formula. Guys ध्यान रखना, ये चैप्टर क्लास 12th के अंदर भी आएगा, आपको क्लास 11th के अंदर भी आएगा. So if you are thinking that this chapter is not important, you guys are mistaken. This chapter is pretty important even for further classes. Now, starting with question number 1. A 2, minus 1, B 3, 4, C minus 2, 3 and D minus 3, minus 2 are 4 points. ये आपको 4 points के coordinates दिए हुए हैं A, B, C and D. In a plane, show that ABCD is a rhombus. What is the characteristics of a rhombus? Characteristic of a rhombus? A rhombus is a quadrilateral. It has got 4 sides and all of the sides should be equal. But are the diagonals equal? No, because वो थोड़ा kite के shape का होता है. So a rhombus can be something like this. Now you will say, is this a parallelogram? See, even a square is a parallelogram. Right, but technically यदि आप देखोगे so सारे के सारे sides equal है, but that is not a square because each angle will not be equal to 90 degrees. Also, this particular part, the diagonal, this one, suppose this is A, B, C and D, then AC and BD will not be equal. So यहाँ पर लिख देता हूँ, in a rhombus, AC will not be equal to BD, but in a square, AC should be equals to what? BD. So this is the characteristic difference. Besides the angle part, of course, guys, angle ADC 90 degree का नहीं है, but in coordinate geometry we technically cannot prove that. आगे बढ़ते हैं. So ये आपको 4 पॉइंट देके रखे हुए हैं A, B, C and D. So let's mark A point. A point आपको देकर के रखा है 2, minus 1. B point आपको देकर के रखा हुआ है that is 3, 4. C point आपको देकर के रखा हुआ है which is minus 2, 3 and D coordinate आपको देकर के रखा है which is minus 3, minus 2. So these are technically your 4 coordinates which are being given to you. ये हो गया. अब now they are asking show that ABCD is a rhombus. अब ABCD को rhombus कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे AB निकालना पड़ेगा, फिर BC निकालना पड़ेगा, फिर CD निकालना पड़ेगा, फिर DA निकालना पड़ेगा. So let's calculate AB. So AB should be equals to formula y same x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. If you want, you can write x1 minus x2. बात कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. So very simple. Now simple trick देखो, ये रहा A, ये रहा B. x2 minus x1, bigger number minus the smaller number. What is the bigger number? So 3 minus 2. 3 minus 2 का whole square कितना हो जाएगा? 1 square plus y2 minus y1. So 4 minus 1. 4 plus 1 is 5. 5 का whole square. So this is going to be root of 1 plus 25 and which ultimately is going to give you root 26 units. Because they haven't said centimeters, meters, that's the reason why. Let's start with the part of BC. So what is BC should be equals to? Once again the same formula, that is x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. So it should be equals to BC. So this minus this. So इस बार मैं this minus this नहीं कर रहा हूँ, मैं this minus this कर रहा हूँ. 3 minus 2. 3 plus 2 is 5. 5 square plus
4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करके स्क्वायर कर लो। सो 4 माइनस 3 इज 1 स्क्वायर, it should be equals to 25 plus 1 and which should be equals to what, that is root 26 units। ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको। अब आ जाते हैं गाइस CD वाले पार्ट पे। CD once again writing the same formula, that is x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square, it should be equals to, पुट करते हैं वैल्यूज। सो CD तो -3 माइनस -2, -3 plus 2 is -1 का स्क्वायर इज +1, सो ये 1 स्क्वायर आ गया, आई मीन -3 माइनस -2 -1 का स्क्वायर आएगा। ओके, नाउ प्लस, अब देन 3 माइनस -2, 3 माइनस -2 इज 5, तो ये भी हो चुका। फिर से सॉल्व करूंगा, -1 का स्क्वायर इज गोइंग टू बी 1 प्लस 25, so the answer is going to once again come as what, 26 units। ये भी हो गया। अब AB हो चुका, BC हो गया, CD हो गया, एंड देन कम्स द वर्ड DA। DA देखते हैं क्या होगा। सो व्हाट इज DA, दिस एंड दिस, सो दैट मीन्स वंस अगेन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सो इट शुड बी इक्वल्स टू DA। तो 2 minus -3 is 5 square plus -1 minus -2, so 2 minus 1 will be 1 का square, so it should be equals to once again 1 plus 25, which should be equals to root 26 units। so if you can see guys, हर एक में करने के बाद में आंसर कितना आ रहा है, AB, BC, CD and DA all are root 26। तो यहाँ पर आपके लिखोगे आप। अब अभी वो भी फाइंड कर लेते हैं। Let's find out AC, same formula, it should be equals to, AC पर आते हैं, 2 minus -2, 2 minus -2 is 4 square plus 3 minus -1 is 4 square। यदि आपको जरा सा भी डाउट लग रहा है तो गाइज एक बार आप खुद भी करके चेक कर लेना। सी मैंने क्या किया, AC निकाला, सो 2 minus -2 is 4 का होल स्क्वायर आ गया, एंड देन -1 -3 करूंगा तो भी -4 का स्क्वायर आएगा, तो मतलब 16 आना है। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दैट इज रूट ऑफ 16 प्लस 16, और दिस शुड बी इक्वल्स टू रूट ऑफ 32, और विच शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज 4 रूट 2। करेक्ट, क्योंकि 32 के आप पार्डन, यदि आप 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालोगे तो कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ 16, 2 टाइम्स ऑफ 8, फिर 2 टाइम्स ऑफ 4, फिर 2 टाइम्स ऑफ 2, फिर 2 टाइम्स, सो टेक्निकली 4 रूट 2 आता है आपके पास में। ये भी आ गया। अब आ जाते हैं किस पर, BD पर। सो आई एम नाउ फाइंडिंग आउट द 2 डायगोनल्स। वंस अगेन द सेम फॉर्मूला, इट शुड बी इक्वल्स टू, लेट्स कैलकुलेट B and D। सो 3 minus -3 is 6 whole square plus 4 minus -2 is 6 whole square, so it should be equals to 36 plus 36, so it should be equals to root of 72, it should be equals to, अब 72 का करोगे तो कैसे फैक्टर निकालोगे, वेरी सिंपल, ये रहा 72, 2 36, 2 18, 2 9 3 3 3 1, so 1 and 1 pair outside, 3 into 2 is 6 root 2 आंसर आ जाएगा आपका। so let's calculate this as, now after finding out all these things, अब उन्होंने बोला है show that ABCDs are rhombus, वो तो यहीं पर ही प्रूव हो चुका था। so you now have to write it that since AB should be equals to BC should be equals to CD should be equals to DA, तो उन्होंने क्या लिखा है, show that ABCDs are rhombus but not a square, since AB equals to BC equals to CD equals to DA, that is either
ABCD is a square or a rhombus. आप बोलोगे सर ये आप क्या लिख रहे हो? देखो चारों के चारों साइड्स इक्वल है, इसका मतलब है या तो वो स्क्वायर होगा या वो रोम्बस होगा. नाउ आई डोंट नो कि वो रोम्बस है या नहीं है, या वो स्क्वायर है या नहीं है, बट एज सून एज आई सी AC एंड BD, AC एंड BD आर नॉट इक्वल, तो यहां पर लिखोगे बट AC is not equals to BD, but AC is not equals to BD, that is ABCD is what? Is a rhombus. Correct? Since AC is not equals to BD, that is ABCD is a rhombus because it cannot be a square. True? But now comes, they have also said find the area of the rhombus. अब rhombus का area कैसे निकालोगे? Very simple. So the formula for area of rhombus should be equals to what? That should be equals to 1/2 into into AC into BD. अब बोलोगे ये क्या है? फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस का हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2. सो लेट्स सी 1/2 इंटू व्हाट इज डायगनल 1? डायगनल 1 आया था 4√2 एंड डायगनल 2 इज 6√2. So 2 times, so 2 into 6 is 12 into √2 into √2 is 2. So 12 into 2 comes out as 24. So 24 units square. फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने इस 2 से इस 2 को कैंसिल किया. So 2 into 6 is 12, 12 into this will be 2, 24 unit square. Unit square क्यों लिखा? एरिया था. Okay. This is how you are going to do the first question. Let's move on to the question number 2. Now what does the question number 2 says? Question number 2 asks you, show that 0, 0, 3, √3 and B3 minus √3 are vertices of an equilateral triangle. Now guys, what do you mean by the word equilateral triangle? Equilateral triangle means जिसके all the three sides will be what? Equal, and the angle between them will be 60 degrees. So let's start with question number 2. Show that O, which is known as the origin, इसके coordinates हैं 0, 0, फिर है A, which is 3, √3, फिर है B, and that is 3, minus √3. Now they are saying prove that they are the vertices of an equilateral triangle. सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? So if this triangle is like this, rough figure O, A and B, then OA, O के coordinates क्या हैं? 0, 0. A के coordinates कितने हैं? That is 3, √3. B के coordinates कितने हैं? That is 3, minus √3. Now let's calculate OA. So OA should be equals to under root of x2 minus x1 का whole square, 3 minus 0, 3 whole square, plus y2 minus y1 का whole square. That is √3 minus 0 का whole square will be what? √3 का square. So moving on, so this will become what? 9 plus √3 का square is 3. So answer will be what? √12 units. आप चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो. कितना आ जाएगा? 2 6 12, 2 3 6, so it will be 2√3 आ जाएगा. So यहाँ पर लिख देते हैं, और it is 2√3 units. Now let's calculate the OA निकाल दिया, अब OB निकाल देते हैं. So OB should be equals to, once again the same formula guys. In the exam you cannot do it like this, we have to write the part that we know that distance formula should be equals to this ka whole square minus this ka whole square. Okay, so OB 3 minus 0 ka whole square will be once again 3 ka whole square, then minus √3 minus 0 will be minus √3 ka whole square.
सो गाइज अल्टीमेटली सेम ही आने वाला है. सो 9 plus 3 and hold on, x2 minus x1 whole square, that is 3 minus 0 का whole square is 3 whole square, sorry plus आता है बीच में. Okay, so it should be equals to root 12. That means it should be equals to 2 root 3 units. Let's move ahead and find out what is AB now. AB should be equals to, again आप this minus this करोगे तो भी बात वही पड़ेगी, आप this minus this करोगे तो भी. So I'm subtracting this minus this. 3 minus 3 is 0 whole square, right? And then root 3 minus root 3. So root 3 minus root 3 will be plus root 3. So it will become plus 2 root 3 का whole square. ये तो 0 ही होगा. 2 root 3 के whole square से square root cancel. आंसर कितना आ जाएगा? 2 root 3 units. So that means that all the three are what? Same. Now they have said, show that this and this are vertices of an equilateral triangle. So we have already said, since OA should be equals to OB should be equals to AB, hence that is triangle ABC is an equilateral triangle. Guys, the shortcut mat likhna is equilateral triangle. So that's all, that's done. But now they have said find the area of this triangle. Now how will you calculate the area of this triangle? Very simple. Area of equilateral triangle, guys, class 9th के फॉर्मूले के हिसाब से ये होता है √3/4 साइड स्क्वायर. सर कौन सी वाली साइड? गाइस तीनों साइड सेम ही होती हैं, तो कोई भी साइड यूज कर सकते हो. So it is going to be √3/4 into what is side? Side suppose कर लो ये है आपके पास में, तो into 2 √3 the whole square. Correct? So let's solve it. √3/4, 2 का whole square is 4 and √3 का whole square is 3. So 4 and 4 will get cancelled. So आंसर कितना आ जाएगा? 3 √3. 2 का whole square is 4, 4 से 4 cancel and √3 into √3 is 3, that is right, 3 √3 square units. And this would be the answer. Got it? Now let's move on to question number 3. So guys, if you can see, actually chapter बहुत simple है, because उसमें कुछ करना ही नहीं होता है, केवल एक ही फॉर्मूला होता है और बस उसी के आप आगे पीछे चलते रहते हो. Okay, so question number 3 पे आते हैं. Find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points this and this in the ratio this. Now जब भी कभी कोई क्वेश्चन रेशियो के लिए आ जाएगा तो ध्यान रखना यहाँ पर एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, and which is known as what? Section formula. Now I'll explain this to you in a very clear-cut format. Please just do listen to this, do not skip. Okay, now see this. सेक्शन फॉर्मूला में सबसे पहले एक डायग्राम देखते हैं. देयर इज दिस पॉइंट ए, देयर इज दिस पॉइंट बी. लेट अस सपोज ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x1 y1 और जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज x2 एंड y2. बीच में एक और कहीं पर भी पॉइंट बना देता हूं, यहां बना देता हूं C पॉइंट. आई डोंट नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस. इसको अपन नाम दे देते हैं से x, y. ओके, सो आई डोंट नो कि ये सेंटर में है या नहीं है, मिडल में है नहीं है. ये अभी आप जो फिगर देख रहे हो तो आपको डेफिनेटली ये दिख रहा है दैट दिस पॉइंट इज मच मोर नियरर टुवर्ड्स ए एज कंपेयर टू बी. नाउ दैट मींस दैट ये कुछ रेशियो में कट कर रहा है. इस रेशियो को नॉर्मली कैसे लिखते हैं? AC/CB. आप चाहो तो BC भी लिख सकते हो. AC/CB. नाउ व्हाट इज AC/CB? क्या ये 1:1 का रेशियो है? क्या C एकदम सेंटर पॉइंट पे है? नहीं. मान लो आपको देकर के रखा है कि AC 1 है और CB आपका 2 है, तो व्हाट विल बी द रेशियो? 1/2. Now what do you mean by this ratio first of all? So let's try and understand this. Suppose you have got there are say 3 students in a class who are sitting right now. Let's assume
and I have got a family pack of this Cadbury's. Okay, now which I have to distribute in between these 3 students. Now उसमें जो ऐसे मल्टीपल Cadbury's के जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, तो ऐसे करीबन 6 कॉलम्स है मेरे पास में. आइडियली मुझे क्या करना चाहिए, मुझे 2-2 की जो स्ट्रिप होती है मुझे एक बच्चे को दे देना चाहिए. 2 की एक स्ट्रिप काटा एंड दे दिया, 2 का एक और स्ट्रिप काटा और एक और को दे दिया. सो 2 2 2, दिस विल बी फाइन. बट डू यू थिंक दिस इज द ओनली सॉल्यूशन आई कैन डू? मान लो जो कैंडिडेट नंबर 1 बैठा है, ही इज वन ऑफ माई फेवरेट्स, दो आई शुड नॉट बी बायस्ड, बट ही इज माई फेवरेट. इफ ही इज माई फेवरेट, मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको 3 दूंगा. थिंक अबाउट इट. यदि मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको 3 दूंगा, इसका मतलब इसको और इसको अब सेम पार्ट तो नहीं मिल सकता. क्यों? बिकॉज टोटल नंबर ऑफ जो कैडबरीज थे, जो वर्टिकल स्ट्रिप्स थे, वो कितने थे? 6. 3 इसी को दे दिए. अब बचे कितने मेरे पास में? 3. अब ये 3 को मुझे इसमें और इसमें डिवाइड करना है. कैसे डिवाइड करूंगा? या तो 1 इसको दूंगा और 2 इसको दूंगा, या 2 इसको दूंगा और 1 इसको दूंगा. तो ये जो रेशियो होता है जिसके अंदर मैं इसे डिवाइड कर रहा है कि मैं 1 इसको दूंगा या 2 इसको दूंगा या 2 इसको दूंगा या 1 इसको दूंगा, दिस इज नोन एज द डिवाइडिंग रेशियो. ओके, सो प्रॉब्लम ये है, ये जो सी पॉइंट है ये एग्जैक्टली मिडिल में नहीं है. यदि मिडिल में होता तो 1 इसको मिलता, 1 इसको मिलता. बट अभी सी थोड़ा सा इसके पास में है, तो इसका मतलब इसको थोड़ा पोर्शन कम मिला है और इसको पोर्शन क्या मिला है? ज्यादा. एंड तो इसका सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? एक्स वाई, विच आई डोंट नो. सो नाउ सेक्शन फॉर्मूला बोलता है यदि आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और आपको इसका रेशियो दे के रखा हुआ है, व्हाट इज दिस एम एन एन, जो भी नंबर है जितने में आपने कट करा हुआ है, जो भी नंबर है जितने पे आपका रेशियो कट कर रहे हैं. सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x शुड बी इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. Now what do you mean by this, sir? कुछ भी लर्न नहीं करना, डिनोमिनेटर दोनों के सेम रहते हैं. So m plus n. Now the only part which you need to learn is if the point lies on the line. ये very very important point है. इसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली. What do you mean by the word internally? Internally का मतलब जो भी पॉइंट है वो इस लाइन पर है और तभी इसको डिवाइड कर रहे हैं. सो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे एक्स वाई. कैसे निकालूंगा? x इज इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n. और y के लिए कैसे निकालूंगा? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. बट ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा. सो लेट्स गिव यू एन एग्जांपल. तो मैं इसको ऐसे लिखे रहने देता हूं. लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट. तो ये है वो पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट. पहले फिगर बना लेते हैं. So there is this point A and there is this point B. What is A के coordinates? 4 minus 3, 4 minus 3, and B के coordinates है 9 and 7, 9 or 7. They are saying find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points 4 minus 3 and 9 7 in the ratio 3:2. अब वो जो C coordinate है वो मुझे नहीं मालूम है, बट उन्होंने रेशियो दिया है 3:2, मतलब ये थोड़ा इसके तरफ में. सो बड़ा वाला जो पैच है वो यहाँ पर है, ये रहा 3 और ये रहा 2. सो व्हाट इज mn? तो पहले लिख लेते हैं टर्म्स. सो x1 शुड बी इक्वल्स टू 4, y1 शुड बी इक्वल्स टू -3, x2 शुड बी इक्वल्स टू 9, y2 शुड बी इक्वल्स टू 7. लेट दिस पॉइंट बी व्हाट? C. और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? xy. करेक्ट. सो द C के जो कोऑर्डिनेट्स है वो कोऑर्डिनेट्स है क्या? x, y. रेशियो क्या दे करके रखा है? m अपॉन n शुड बी इक्वल्स टू 3 अपॉन 2. m और n के आपको जो कोऑर्डिनेट दे के रखे हैं वो कितना दिया है? 3 and 2. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज अब यहां पे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आएगा. सी गाइस, ये जो 3:2 है ये रेशियो है. आई डू नॉट नो एग्जैक्टली यहां पर टर्म कौन सी है.
because it can be something like this. It can be written as 3 into 3 is 9 upon 2 into 3 is 6. यदि आप इसे कट करोगे in the simplest form, 3 2 6, 3 3 9, सेम ही आएगा. So 9 upon 6 भी हो सकता है. It can be in the form of 15 upon 10, ये भी हो सकता है. It can be in any of the part, right? So guys, जब भी कभी आप इसको लेते हैं तो इससे बचने के लिए इस प्रॉब्लम से कि नंबर कौन सा है आखिर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, we always take m as 3 देके रखा है तो लिख दोगे 3k. What is k? Where k is any natural number. What is n now? वहां पर कितना दिया है 2, तो लिख दोगे 2k. क्यों? बिकॉज जो भी कोई नंबर है वो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तभी जाके बनता है. ओके, सो मैंने यहां पर ले लिया, इस नंबर को मैंने ले लिया 3k और इस नंबर को ले लिया 2k. अब देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे. डोंट वरी अबाउट दिस k, वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा. सो यहां पर आपके पास फॉर्मूला आएगा x शुड बी इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n and y should be equals to my2 plus ny1 upon m plus n. Now how will you do this? Very simple. Put down the formula or values. What is m? 3k, तो यहां पर डाल दो 3k. What is x2? x2 is 9, तो यहां ब्रैकेट बना के लिख दो 9 प्लस n कितना है 2k, तो यहां पर लिख दो 2k. What is x1? x1 is 4, right? Whole upon m plus n. What is m? 3k. What is n? 2k. तो यहां पर लिख देता हूं 3k प्लस 2k. 5 भी निकाल लेते हैं. सो y कितना हो जाएगा आपके पास में m/2. m कितना है 3k इंटू 7. 3k इंटू 7 प्लस ny1. n is 2k. y1, what is y1 is -3, correct? Whole upon m plus n. What is m plus n? 3k plus 2k. ये भी हो गया. अब क्या करोगे? वेरी सिंपल. x should be equals to 3k into 9 will be 27k plus 4 into 2k will be 8k. 3k plus 2k will be 5k and y का कोऑर्डिनेट कितना है? 3k into 7 will be 21k. 2k into -3 is -6k. 3k plus 2k is 5k. तो x का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? और x should be equals to 27 plus 8. 27 plus 3 is 30. 30 plus 5 is 35k. 35k upon 5k. K cancel. Answer will be what? 7. So x की वैल्यू आ गई है 7. Then comes y should be equals to 21 minus 6 is 15k upon 5k. k cancel. 5 3 is 15. ये आ गई y की वैल्यू. सो अभी उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो इतना. सो द कोऑर्डिनेट्स विल बी व्हाट? 7, 3. तो ये c के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 7, 3. दैट्स ऑल. दिस इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन. एक्सटर्नल डिवीजन डोंट वरी क्लास 10th में नहीं है, इट कम्स इन 11th. कोई डिफरेंस नहीं आता, बस यहां पर माइनस साइन आ जाता है. mx2 minus nx1 upon, दैट्स ऑल. उतना ही डिफरेंस आता है. सेम इसमें माइनस साइन आ जाएगा. बट एनीवे एक्सटर्नल डिवीजन अभी नहीं डिस्कस करते हैं. लेट्स मूव अहेड इन क्वेश्चन नंबर 4. नॉट इन क्वेश्चन नंबर 4, टू क्वेश्चन नंबर 4. ओके, सो लेट्स मूव. So I have rubbed this formula also. It's a very simple formula, guys. mx2 plus nx1 upon m plus n and m/2 plus ny1 upon m plus n. आगे बढ़ते हैं. So क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं.
What is question number 4th? Find the coordinates of the midpoint of the line segment joining the points this and this. इस बार उन्होंने midpoint ही पूछा है. So let's say suppose ये रहा A, ये रहा B. A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, and C exactly in the center है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y. Now यदि जब भी कभी यहां पर लिख देता हूं for center, for point in center C, that is midpoint formula. तो midpoint formula मैं आपको लर्न नहीं करवाऊंगा, इनफैक्ट मैं आपको निकालना बता देता हूं. इट्स वेरी सिंपल. सी ये बीच में है, इसका मतलब दोनों के दोनों इक्वल है, इक्वल डिवीजन हो रहा है वो कैडबरी का. तो इसका मतलब है इसके पास भी 1 है और इसके पास भी 1 है, किसी के पास कम ज्यादा है ही नहीं, दोनों का है. तो अब आगे बढ़ते हैं. तो यदि आपने फॉर्मूला बनाया तो यहाँ पर लिख देता हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, और फिर आपको हंसी आएगी सर इतनी मेहनत क्यों करवाई. मिड पॉइंट फॉर्मूला शुड बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. This is for x, and for y it will be what? It will be my2 plus ny1 upon m plus n. जहां जहां पर m और n दिख रहा है वहां पे 1 और 1 पुट कर दो तो क्या आएगा, x should be equals to m into x2. तो कितना हो जाएगा, 1 into x2 will be x2 plus x1 upon 1 plus 1 2, and y should be equals to my2 plus ny1 which will be y2 plus y1 upon 2. So इसका मतलब है यदि आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालना है तो आप क्या करोगे, this plus this upon 2 plus this, sorry, this plus this upon 2 or this plus this upon 2, and that should be equals to x1. उतना ही काम करना है. आगे बढ़ते हैं. So let's start with question number. Okay dear, so I'll not rub this, but मैं इसके नीचे का क्वेश्चन करना स्टार्ट करता हूं. तो let's see this. Question number 4 said find the coordinates of the midpoint of the line segment joining the points -5, 4. So A का कोऑर्डिनेट कितना है, -5, 4, and B का कोऑर्डिनेट कितना है, that is 7, -8. 7, -8. और इन्होंने आपको बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट. तो वेरी सिंपल, आप क्या लिखोगे फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट. तो यहां से क्वेश्चन चालू हो जाएगा. फॉर मिड पॉइंट x should be equals to x1 plus x2 upon 2 and y should be equals to y1 plus y2 upon 2. और गाइस इसमें कोई सोचने की बात भी नहीं है. क्यों, बिकॉज सेंट्रल पॉइंट निकालोगे तो दिस प्लस दिस अपॉन 2 ऐसे ही तो निकालते हो. याद है डॉबर्नियर ट्रायड्स में मॉलिक्यूलर मास निकाला था अपन ने, दिस प्लस दिस अपॉन 2, सेम थिंग गाइस. सो लेट्स सी व्हाट इज x1. सो x1 शुड बी इक्वल्स टू इट्स -5, y1 शुड बी इक्वल्स टू इट शुड बी 7, sorry 4, and x2 should be equals to 4 and y2 should be equals to -8. अब क्या करोगे, वेरी सिंपल, x should be equals to x1 plus x2. So x1 plus x2, तो 4 minus 5 कितना हो जाएगा, -1 upon 2. And what is the coordinate for y? y1 plus y2, तो 4 minus 8 is -4. तो ये आएगा -4 upon 2, and that should be equals to -2. So what are the coordinates? -1 upon 2 and -2. That's all. Answer. कुछ नहीं करना guys. This plus this. Just a second. मैंने x2 मैंने 4 लिख दिया. My fault. It should be 7 होना चाहिए था. अच्छा हुआ एक और कमेंट से बच गया. Otherwise तो हमारे स्टूडेंट्स तो खतरनाक कमेंट्स. So -5 and 7 and 4 and -8. So let's do it again. -5 x1 plus x2. 7 minus 5 is 2. So 2 upon 2 should be equals to what? 1. And then this plus this,
4 minus 8 is minus 4 by 2 is minus 2. So what do you think the answer should be? Answer should be 1 and minus 2. And that's all guys. This is known as the midpoint formula. So midpoint formula खुद से भी derive कर सकते हो, ऐसे चाहो तो ऐसे कर दो. Let's move ahead. Let's move from question number 4 to question number 5. Guys मैंने question number 3 कर दिया? हाँ कर दिया. Now, so let's move on to question number 5. Let's change the marker. So question number 5 says, find the coordinates of the point of trisection. अब guys trisection का मतलब क्या हुआ? मतलब मुझे एक चीज को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है. I need to divide this particular Cadbury so-called into 3 parts. What can be the options? या तो एक को 1 वाला पीस मिलेगा और एक को 2 का पीस मिलेगा. ये भी तो हो सकता है इसको 2 का पीस मिले और उसको 1 का पीस मिले. एक चीज तो पक्की है, बीच में से तो डिवाइड नहीं कर सकते. देयर कैन नॉट बी अ रेशियो लाइक 1.5 इसको दे दिया, 1.5 इसको दे दिया. एक्चुअली हम ऐसे नहीं करते हैं. खैर, फिफ्थ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन. सो आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइंग. देयर इज दिस पॉइंट A and B. Okay. Of the line segment joining the points A and B. So पहले कोऑर्डिनेट बना लेता हूं. ये है -5, 6 and 4, -3. 4, -3. ओके. अब जब ट्राइसेक्शन होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 हिस्सों में चीजें डिवाइड हो रही है. मान लो मैंने एक हिस्सा यहां से काटा, इसको नाम दे दिया C. एक ये वाला पोर्शन काटा, इसका नाम दे दिया D. तो अब आप देखो, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2. हो गया ट्राइसेक्शन. बाइसेक्शन कब होता है? जब एक पॉइंट 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है. 2 पॉइंट्स 1, 2, 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए इसको ट्राइसेक्शन बोलते हैं. या तो AC अपॉन CB कितना रेशियो हो जाएगा? AC अपॉन CB शुड बी इक्वल्स टू 1/2 और AD अपॉन DB should be equals to what? 2:1. कैसे? खुद देखो. AD मतलब 1 + 1 2, DB 1. ये रेशियो हो गया. सर लेकिन इसमें तो दो रेशियो है, तो वाई आर यू वरिंग? पहले हम इसको लेकर के आंसर निकालेंगे, एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा. फिर हम इसको लेकर के आंसर निकालेंगे, एक और कोऑर्डिनेट आ जाएगा. टेंशन. Let's find out the coordinate for the point what? C के लिए. For point C, इसको मान लेते हैं कुछ कोऑर्डिनेट है अपने पास में x, y और इसको मान लेते हैं z, a मान लेते हैं, मतलब कुछ भी मान लो वैसे तो. ओके. For point C, x1 should be equals to -5. y1 should be equals to पॉइंट कितना आएगा? -5, 6. x2 should be equals to, अभी हम पॉइंट क्या ले रहे हैं? AC और CB. AC और CB, तो D को भूल जाओ, तो CB, तो B का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? It's 4. And what is y2? It should be equals to -3. ये हो गया. सो x1 हो चुका, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया. अब क्या करूंगा? वेरी सिंपल. व्हाट इज x? x should be equals to x and what is y? y should be equals to y. अब बढ़ते हैं आगे. तो फॉर्मूला हो जाएगा x should be equals to mx2 plus nx1 upon m plus n. Then comes y should be equals to my2 plus ny1 अपॉन m plus n. बट गाइज m और n तो लिखा ही नहीं, तो यहां पर लिख लेते हैं. m अपॉन n शुड बी इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि पहले मैं इस वाले केस को ले रहा हूं ताकि C का पॉइंट निकले. फिर मैं AD और DB को लूंगा तो D का कोऑर्डिनेट भी निकल आएगा. तो ये आ गया 1:2 और m शुड बी इक्वल्स टू 1k और n शुड बी इक्वल्स टू 2k, वेयर k is any constant. करेक्ट. अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं.
x की जगह पर x, व्हाट इज m, m की जगह पर मैंने लिखा 1k, तो 1k का मतलब k ही होता है. व्हाट इज x2, x2 इज 4, तो लेट्स राइट 4 प्लस n, n कितना है 2k, so let's write 2k. What is x1, x1 is -5, so let's write -5 whole upon m plus n, 2k plus 1k, so it should be k plus 2k. y पर आ जाते हैं, so y should be equals to m by 2. What is m, 1k मतलब k, y2 कितना है आपके पास में -3 प्लस n, n कितना है 2k. What is your y1, y1 is 6 upon m plus n, that is k plus 2k. What do you think the answer should be? Very simple. X should be equals to 4k minus 10k. 4k minus 10k. 4k minus 10k will be minus 6k. K plus 2k will be 3k. k और k हमेशा कैंसिल होगा, डोंट वरी. सो ये आंसर आ जाएगा -2. सो x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया -2, y के कोऑर्डिनेट पर आता है. सो y should be equals to -3k plus 12k, k plus 2k is 3k, 12 minus 3 is 9k upon 3k, k cancel, आंसर कितना आएगा 3. So what is the coordinate for the point C, -2,3. तो C का कोऑर्डिनेट कितना आ चुका है -2,3. ओके, अब निकालते हैं D के लिए. नाउ D को निकालने के आपको दो मेथड बता देता हूं, दैट इज वेरी वेरी सिंपल. सी, आपको मालूम है कि ये दोनों के दोनों ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट. हर एक का रेशो 1 1 1 है. सर लेकिन अभी तो आपने बोला कि 1:2 है. 1 plus 1 is 2, तो यदि आप इसका और इसका रेशो निकालोगे तो इट विल बी 1:2. बट यदि आप इसका और इसका रेशो निकालोगे तो 1 plus 1 is 2, 2:1 का रेशो आएगा. करेक्ट. बट एक्चुअली में तो कट 1 1 1 पे कर रहे हैं ना. अब इसका मतलब समझो, यदि आपके पास में C का कोऑर्डिनेट आ चुका है, तो यदि आपको D निकालना है तो इसका मतलब है D मिड पॉइंट हो गया C और B के लिए. तो इसका मतलब दिस प्लस दिस अपॉन 2, x का कोऑर्डिनेट आ गया, दिस प्लस दिस अपॉन 2 y का कोऑर्डिनेट आ गया, मतलब A का कोऑर्डिनेट आ गया. तो हम दोनों से करते हैं, यदि आंसर सेम आ गया तो हम सही है, अदरवाइज हम गलत. ओके, और आप तो मालूम है मैं तो कितनी गलतियां करता हूं. खैर, सो मैं इस वाले पार्ट को रब कर रहा हूं. लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट ऑफ D, एंड विल बी डूइंग बाय बोथ द मेथड्स टू मेक यू अंडरस्टैंड कि मैंने आखिर ऐसा क्यों किया. ओके, नाउ लेट्स से, सो फॉर पॉइंट D, पहले मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल देते हैं. मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला, यू कैन चूज एनी ऑफ द मेथड, एनी ऑफ द मेथड, नॉट बोथ. मिड पॉइंट फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास में z should be equals to x1 plus x2 upon 2 and a should be equals to y1 plus y2 upon 2. Now what is over here? x1 कितना है आपके पास? x1 is -2. What is y1? y1 should be equals to 3, x2 should be equals to 4 and y2 should be equals to -3. Correct? So let's see this. What is x1 plus x2? -2 plus 4. 4 minus 2 is 2 upon 2. Cancel, answer is 1. Or a should be equals to y1 plus y2. 3 minus 3 is 0. 0 upon 2 will be what? 0. So coordinates क्या आ जाएंगे z और a का? 1, 0. So coordinates will be 1, 0. Correct? But हम कैसे मान लें कि ये सही है? So let's use section formula now. Section formula.
इस बार हमें किस किस का रेशियो चाहिए? सो गिवन आपको दे करके रखा हुआ है AD अपॉन DB. AD अपॉन DB शुड बी इक्वल टू व्हाट इज द रेशियो? 2:1. तो यहां पर लिख देते हैं हियर M should be equals to 2K, N should be equals to K. Correct? AD और DB 1 and 1 2:1. ये भी आ गया. अब क्या करूंगा? x1 should be equals to, क्योंकि अब की बार आप AD और DB को ले रहे हो तो A का कोऑर्डिनेट x1 बनेगा. So x1 should be equals to -5, y1 should be equals to 6, x2 should be equals to 4 and y2 should be equals to -3, क्योंकि आपको AD और DB का रेशो चाहिए. x is equals to z and y is equals to a. अब यदि हमारा आंसर सही होगा तो z और a की वैल्यू हमें दोबारा से 1 और 0 मिलनी चाहिए. लेट्स सी. Formula will become something like this, that is x, पहले लिख देता हूं फॉर्मूला. x is equals to mx2 plus nx1 upon m plus n and y should be equals to, क्या होगा फॉर्मूला? my2 plus ny1 upon m plus n. मैंने पूछा ऐसे क्या होगा जैसे वहां से आवाज आने वाली है. मतलब ना ये टीचर्स का भी, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं. x is equals to mx2. so what is m? अच्छा यहां पर m नहीं लिखा, ऊपर लिख दिया था. so 2k into what is x2? that is 4 plus what is n? n is k. what is x1? it is -5 upon m plus n. m plus n, 2k plus k is 3k, while y should be equals to m by 2. m कितना है? 2k. y2 कितना है? -3. n कितना है? n is k. what is y1? is 6. m plus n कितना है? 2k plus k, 3k. let's solve this. so x should be equals to 4 into 2k is 8k minus 5k whole upon 3k. so answer should be 3k upon 3k. cancel और आंसर कितना आएगा? 1. यहां पर y should be equals to 2k into -3 is -6k plus 6k upon 3k. कॉमन सेंस गाइस, ये वाला पार्ट तो कैंसिल ही हो जाएगा. सो आंसर विल बी व्हाट? 0. सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट विल बी 1, 0. सो दैट्स हाउ यू कैन डू इट. सो चॉइस इज योर्स. बस इतना ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर ट्राइसेक्शन, बाइसेक्शंस ऐसा वाला पार्ट यूज होना चाहिए. सो दिस वुड बी द आंसर. और हमारा आंसर सही भी है बिकॉज हमने दोनों से चेक कर लिया. करेक्ट. So that's all from my side today guys, all of this 5 question. Tomorrow we are going to end up this particular chapter as well, which is the coordinate geometry. कल हम करीबन फिर से 5 या 6 क्वेश्चंस लेंगे, बट कल जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल पे एंड सेक्शन फॉर्मूला पे आल्सो. ओके, सो फाइन गाइस, एंजॉय फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. लव यू ऑल. चीयर्स गाइस. सी यू. बाय.